ये आप फोन कर रहे हैं। टॉस जीता कौन आज? एनीबडी फॉलोइंग? एक्चुअली मैं यहाँ टीवी है, बीच में चला सकता हूँ क्या? India won the toss and elected to bowl. Okay, okay. So that's different And from the Pakistan is 64-1 for 1. अच्छा, अच्छा. How nice. चलो बढ़िया यार, आप फॉलो कर रहे हो. So, should we start? We can, boss. Huh? But India है थोड़ा. Oh, Prabir is also here. How nice. I have a very senior colleague from Calcutta, Dr. Prabir Paul. Now we can, if anyone wants to talk, you can unmute yourself. Yeah. So for 2-3 minutes. Dr. Prabir Paul is part of a team in Calcutta that looks after a lot of facilities, including persons with mental illness who are homeless. वो जो है ना, what's the name of the organization? संकल्पा, ईश्वर संकल्पा. अनिल जी. Yeah. कैसे हो? Yeah, it's the festival is pretty. Kolkata is now under the seas of crowd. Everywhere. Oh, yeah. अच्छा. Yeah. पूजो शुरू हो गया. Yeah. Right. What is it Not called? yet started, but today is the. Yeah, I saw a few messages. What is it called? Shubho. Yeah. Shubho Sharodiya. So, yeah. Today is the end of the Pitri Pakho and the start of Devi Pakho. Right. Devi Pakho means the womanhood. It's the start. It's the Okay. first day. सर आज अमावस्या है और ये वर्ष का डेट है. ये जो भूला बिस्तरा है अपने मित्रों को याद करना चाहता है तो वो आज कर सकता है. और कल से जो है वो दूसरा पक्ष शुरू हो जाएगा. Puja will start from 7th day. Okay. उसने बड़ा अच्छा दिखाया है. और कहानी. And we for us not in the. Yeah. So, And my younger daughter stays in Noida. They are also having the Puja festival. Oh, so when you come to Noida, you must tell me, man. Yeah, sure. You and Babaji keep gallivanting globally, no? Yep. Somewhere. I know Facebook पे दिख जाता है, right? अच्छा. I like traveling. नहीं, that's good, यार. Nice. I remember I had gone to Vienna for the World Congress. Okay. So I saw the local Mozart concert. Yeah. बहुत बढ़िया था. That was wonderful. okay then, sir. Sir, I think about nearing 3:07, 3:10. We have
50 plus people already. We can start. The people will join. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. तो नमस्कार और सुस्वागतम। ये मशवरा लाइव का 80वां एपिसोड है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू द सीजन 3 ऑफ मशवरा लाइव कंसल्टेशन एज वी नेविगेट द चैलेंज एंड opportunities of an inclusive world. So this live consultation is on inclusion and diversity, and it reminds us that these are the essential components for equitable society. I'm Alok with you, and it's my pleasure to host this session with Dr. Nimesh G Desai sir and our esteemed guests. So today we have the topic on the navigating the complex relationship between mental health and disability. हम दिव्यांगता और मानसिक स्वास्थ्य में कैसे एक सकते हैं कि हम स्ट्रेटेजीज होती है, क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या क्या इंक्लूसिव फैक्टर्स हो सकता है, उन सारे तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड दिस एपिसोड ऑफ मशवरा लाइव इज 3.80 एपिसोड। दिस इज आवर and episode number 80, and definitely we will gain insights into the so many intersections of mental health and disability, because we have the very eminent expert on understanding both the part, the disability as well as the mental health. So let's discover and learn so many strategies and everything. And we have Dr. Nimesh G Desai, and he has the wealth of knowledge and experience. And our audience we represent from the diverse group of individuals from the various backgrounds and professionals. They work in disability and mental health, and many people are from the community. Many are the students. And we have the self-advocates with us in our studio here, as well as from the virtually. I'm finding many self-advocates with the intellectual and developmental disabilities and other mental health issues are participating and joining us. So we must ensure that inclusion and diversity remain at the forefront of our conversation. हम लोग जो भी बातचीत करेंगे, आज हमारे साथ स्टूडियो में भी बहुत सारे अलग अलग विधा के लोग हैं, अलग अलग जानकारी रखने वाले लोग हैं। वो डॉक्टर भी हैं, वो रिहैब प्रोफेशनल्स भी हैं, वो एक्सपर्ट भी हैं, और हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, और सबसे ज्यादा हमारे जो सेल्फ एडवोकेट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन सब के लिए आज हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि कैसे हम एक समावेशी समाज और कैसे एक विविधता के साथ एक समावेशी समाज के बारे में बातचीत। मैं थोड़ा सा आपको मशवरा के बारे में बता देता हूँ। मशवरा was started on 30th April 2020 में स्टार्ट हुआ था during the COVID-19 pandemic, and our first episode was with eminent expert Dr. Nimesh G Desai sir and Dr. Roma Kumar madam. So we had more than 60 episodes in the season 1, and around 2 lakhs viewers we had in Mashwara have joined all the episodes. And during the Mashwara season 2, we had around 30 episodes, and our viewers grew up to the 5 lakhs. और ये पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह से ये लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम लोगों ने उन सभी आप सभी की डिमांड से आप सभी ने बार बार कहा कि मशवरा स्टार्ट होना चाहिए, तो हम लोगों ने फिर से मशवरा सीजन 3 स्टार्ट किया है। और आज के हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो लेट्स गो इनटू द डीपर अंडरस्टैंडिंग our distinguished expert. We have with us Professor Dr. Nimesh G Desai sir, and he is the senior consultant psychiatrist and psychotherapist. So we can have the multidimensional impact of discussion, and he is the former member secretary and CEO of SMHA, State Mental Health Authority Delhi, and he is the former director of IBHAS, and moreover he is the president of Manovikas Charitable Society. We welcome you sir, and with a big round of claps
Hello, my friend. And thank you. Let's tell you about what we will cover today. And during this our consultation, why we say the consultation, we have the lot of opportunities to ask the question. हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे तो हम पूछ सकते हैं. जो हमारे एक्सपर्ट हैं, मे बी हम इन सारे एक्सपर्ट से बार बार नहीं मिलते हैं. हो सकता है कि हमारे मन में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई बात हो, और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी कि जहां लगता हो कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है. तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हम रेंज ऑफ टॉपिक्स, रेंज ऑफ डिस्कशन हम उसको रख सकते हैं. हम लोग आज डेफिनेटली बात करेंगे कि हाउ मनोविकास इज प्रमोटिंग द वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी. जो हमारे मनोविकास के प्रोग्राम्स हैं, जो कार्यक्रम है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें जो मानसिक रूप से दिव्यांगजन है वो कैसे इंक्लूड होते हैं और कैसे उनका मेंटल हेल्थ इश्यूज को टारगेट किया जाता है, कैसे उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज को हम डील करते हैं. We also understand that legal capacity of the individuals with mental health issues. हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो दिव्यांगजन है या फिर खास करके जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं या फिर खास करके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज वाले लोग हैं, उनके पास वो तो अपना कोई लीगल कैपेसिटी है ही नहीं, उनके पास वो कोई बातचीत कर ही नहीं सकते. तो आज डेफिनेटली हम इस बात को भी खोल के रखेंगे और हम हमेशा जब भी मशवरा के सेशन में बात करेंगे, ये हमारे फोरफ्रंट में ये बात है कि हम इस बात को पूरी तरह से आत्मसात कर ले कि जो भी हमारे पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज या मेंटल हेल्थ इश्यूज वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनके पास पूरा एक अधिकार है. और आज हम लोग सबसे जो बहुत अच्छी बात करेंगे वो बात है हमारे देसाई सर के साथ कि हम एक पूरे ओवरव्यूज के बारे में बात करेंगे मनोविकास का जो मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है. क्योंकि सर जब से ज्वाइन किए हैं मनोविकास, इट हैज बीन मोर देन 6 years, एंड देन इन द लास्ट 6 years हम लोगों ने बहुत सारी मेंटल हेल्थ के बारे में सेमिनार्स किए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, सिंपोजियम किए हैं, मशवरा लाइव कंसल्टेशन किए हैं. और इस तरह से हमने बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा है, जो कि उन सारे बातों का समावेशन डॉक्टर देसाई सर करेंगे. एंड वी वेलकम यू सर, and we can start with your conversation. Definitely with your input we will carry forward the things. Yeah, sir. Thanks so much, those. Thanks, Alok. Most of you, good afternoon. Most of you, I'm sure, are familiar with Dr. Alok Bhuvan, the managing trustee of Manovikas Charitable Society, and Dr. Indira Alok and the rest of the team. And of course, Manovikas, the scope of work. But some of our psychiatrist friends have also joined. As far as I see, Dr. Prabir Paul from Calcutta, Dr. T. Sagar from Kerala, must be a few others. So let me briefly say what I understand and how my journey has been. In these 40 odd years that I've had in psychiatry and mental health, mainly in academic institutions with public service, 1980s and early 90s, there wasn't really too much of overlap between these two fields of knowledge or endeavor, which was seen, disability and mental health. Psychiatry as a medical specialty evolved into mental health really in the 80s, 90s, and now there's some controversy and some debate about those identities, but that aside, as most of you will recall, 95 Persons with Disability Act PDA brought in the idea of number 5 and 6 of the 7 disabilities recognized, number 5 being what was then called mental retardation, and 6 being mental illness related disability. Number 7 being the multiple disabilities. At the same time, Dr. Prabir Paul will remember, and many of you might be interested in knowing, that the law that governs mental health services, Mental Health Act of 1987, which replaced the 1912 Indian Lunacy Act, and the 2017 recent law Mental Health Care Act, both 87 and 2017 Act clearly say that this law will not cover instances of
services for persons with mental retardation. Now, I must briefly explain, very briefly, what I have understood of why this has so happened. See, apparently, I surmise and I understand that before independence and after independence, those 34 or 37, now 47 state mental health institutions, from Nimesh to CIP to IBAS to IOP, Calcutta to others, used to have a lot of long stay patients, people who were brought in and never went back, discharged to the family or to the community. Half or two-thirds, if not more, of those used to be persons with mental retardation. And so as psychiatrists and public policy people of the 70s and 80s saw the situation while finalizing successive revisions of the mental health bill that time, which became the Act 80, 1987, they saw that at least the mental health institutions and the core mental health field should not include people with mental retardation. The basic idea I've understood from senior colleagues who were involved that time is that the beds in mental health institutions, mental hospitals as they were called, were getting occupied by persons with mental retardation, where he could not do much treatment, and so much more likely that they ended up being long stay patients or lifelong patients of those mental health institutions. So that logic and rationale is understandable at one stage, but I have felt as a faculty member in the Nimesh 80s, 90s, and after that, that what that has done is unfortunately increase the distance between the clinical mental health field, or including community outreach services, but certainly clinical mental health as it is practiced in hospitals, private sector or clinics or government institutions, vis-a-vis our colleagues like Dr. Alok Bhuvan and Dr. Indira Alok and many others here who are trained professionals in educational psychology, rehabilitation psychology, and to do with what I now like to refer to as IDD, intellectual and developmental disability, or a lot of people prefer to call all of these as neurodevelopmental disability or disorders. This kept increasing, and so unfortunately, mainstream psychiatry and mental health training, not just MD psychiatry trainees, but even MPhil clinical psychology or psychiatric social work training, even at institutions like Nimesh and CIP and IBAS, kind of decreased the emphasis or did not pay direct attention to persons with intellectual impairment or disability, dyslexia, autism, as we were discovering and learning more and more of those categories. So for me, it has been a huge learning opportunity in the last 20 years or so in the field of disability in general, through many friends in NGO sector like Achal Bhagat and many others, and specifically through Manovikas and Dr. Alok and his team in the last few years more, to try and, for my learning, understand this better and hopefully bring that learning to the higher levels of discourse. This distancing between the two fields is really sad. I was thinking, and I've jotted down, most of you will remember, and if you don't, allow me to remind you that 10th October World Mental Health Day, that we are starting this third section of Mashavara, third version of Mashavara in the light of. This year, every year has a theme, and this year has a theme of mental health. And mind you, it's not even saying mental health care. Mental health, a universal human right. Now, not just here today in this session and in this group, but otherwise also in last 1 week, 10 days, as we have discussed this at many points of time, not always goes back to what are the sections that are most unlikely to get mental health or mental health care, even access to mental health right. Overlapping persons, situations, all of them, mentally ill persons or people with intellectual disability or people with coexisting comorbidity issues. So we are, at least that part of today, is actually most unlikely to get that slogan implemented. You know, I must say, in all seriousness, that we all learn to accept as we progress through life and career
that slogans might seem bombastic, slogans, seem very aspirational, unrealistic, and yet it's okay to have slogans because they help society and government and concerned professionals and groups to try and strive for something. So while one learns to live with largish, unrealistic, slimming slogans, it's worth noting that mental health for persons with disability and instances where persons have one or more coexisting conditions is extremely difficult. It's one of the blind spots by the society, by the government, by and large, and unfortunately, even by the affected persons and families. And I say that with fair amount of seriousness and responsibility, that for persons with any of the disabilities or mental health conditions and their family members or carers, and one must say even professional groups, there is this blind spot about this overlap. And like Dr. Alok was saying, last 5 or 6 years, what we have tried, Dr. Alok's team, with tremendous willingness and energy level and everything that they bring. And when I was at IBAS with IBAS team, a lot of my colleagues in the departments of psychiatry, clinical psychology, and psychiatric social work at IBAS, being very enthusiastic partners and contributors to that effort. I think from 18, 19, 20, at least 17 or 18, 19 or 18, 19, right? And sir, then of course we have... Can we mix Hindi? Oh, Hindi, sorry. Thank you. तो हम लोग ये जो ये जो 5-6 साल से कोशिश में लगे हैं कि ये जो एक ब्लाइंड स्पॉट है, अनदेखी ओवरलुक्ड एरिया है, दिव्यांग स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य, इसको हम लोग समझें और बातचीत के जरिए, वार्तालाप के जरिए बड़े ग्रुप्स तक पहुंचाएं और इसमें वार्तालाप बढ़ाएं, जिससे हम सब लोग जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, उसको समझें और क्या क्या किया जा सकता है वो और बेहतर आइडेंटिफाई कर सके। तो पिछले 5-6 साल से, जैसे डॉक्टर आलोक ने कहा, हम लोग करते रहे नेशनल सेमिनार ऑन मेंटल हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, and last December we did kind of what turned out to be an even larger event. We had a full 2-day event in Delhi with a lot of people joining on virtual platform. तो टेक्नोलॉजी का ये फायदा हो गया महामारी के दौरान कि अब लोग बिना असुविधा के, बिना पैसा खर्च किए बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि हमने जो डॉक्टर आलोक ने, टीम ने, हमने आइडेंटिफाई की थे 3 मेजर थीम्स पिछले 1-2 साल में, और खासकर पिछले दिसंबर 2022 के सेमिनार में। आई फर्स्ट शेयर दैट विथ यू। मैं आपके सामने वो 3 मुद्दे रख दूं। हमें लगा था उस सिम्पोजियम की तैयारी में भी, उन 2 दिनों के दौरान और बाद में लगता रहा कि ये 3 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। अगर हमें ये जो सिचुएशन है, दिव्यांग स्थिति और दिव्यांग जन और उनके परिवार और उनके अभिभावक और मानसिक स्वास्थ्य के फील्ड को अगर साथ देके समझना है, हमने आइडेंटिफाई की थी 3 थीम्स। एक तो ये कि जो सामाजिक और मानसिक पहलू हैं दिव्यांग जनों के, उनके परिवार के और उनके स्वास्थ्य और वेलबींग के बारे में। तो जो दिव्यांग जन है, उनके परिवार गण है, उनको किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी है, एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन एंड मोर। एंड जो कुछ थोड़े एक्सपेरिमेंट्स और सक्सेसफुल हुए हैं कि जहां व्यक्ति विशेष ने और परिवार ने कुछ थोड़ा हासिल किया, मिसाल के रूप में या अपने आप में। तो एक तो वो एक थीम है कि भाई जो दिव्यांग जन है, दिव्यांग जन के परिवार हैं, उनके साथ जो जीवन में बीतती है, उनके स्वास्थ्य के लिए उसमें कौन कौन से पहलू मानसिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्व रखते हैं। दूसरा मुद्दा था कि सच में जो समावेशी समाज की हम कल्पना कर रहे हैं, कानून अब बाधित करता है हम सबको कि हम समावेशी समाज की कोशिश करें और समावेशी समाज को सच्चाई में बदलें। वो हासिल करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सामाजिक और मानसिक,
और मोटे तौर पे अगर ऐसा नहीं हो पाता है, समावेशी सरकार, समावेशी समाज मुश्किल है या कठिन है, तो क्यों ऐसा है और कौन कौन से कारण है जो समावेशी समाज की जो कल्पना है, जो कोशिश है, उसको मुश्किल बनाते हैं। और तीसरा मुद्दा था खासकर जो मानसिक बीमारियों से संबंधित दिव्यांग स्थिति होती है। तो ये तीन पहलू हमने पिछले कुछ समय से आइडेंटिफाई किए हुए हैं और काफी चर्चा की है। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि इस दौर पे अभी मैं थोड़े मिनट रुक जाऊं और आप सबसे, हमारे जो मनोचिकित्सक दोस्त हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस पेरेंट्स और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन फील्ड के, एंड सेल्फ एडवोकेट्स हैं जैसे डॉक्टर आलोक ने कहा, तो ये जो बहुत बढ़िया हेट्रोजिनस मिक्स ग्रुप है, उनको हम एक मौका दें हम सबके बीच वार्तालाप आगे बढ़ाने का, कि क्या मोटे तौर पे ये ढांचा हमें ठीक लग रहा है, कोई टिप्पणी है, कोई विचार है, कोई और पहलू है जो हम शायद मिस कर रहे हैं। और फिर मैं थोड़ी बात करूंगा जो मैं समझा हूं, जितना सीखा हूं, समझा हूं, भाई बहुत कुछ बाकी है इन तीन थीम्स के बारे में भी, इन तीन मुद्दों के बारे में। और फिर हम ओपन हाउस फिर कर सकते हैं, अनुभव, केस स्टडीज, स्पेशली कंसर्न्स एंड डिफिकल्टीज। तो आलोक, इफ यू एग्री एंड इफ everybody agrees, let's pause here. It's about 3:30. तो ओवरऑल मुद्दा जो है और जो तीन थीम्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनके बारे में टिप्पणी हो, विचार हो किसी का, खासकर डॉक्टर सागर, अनिल जी भी यहाँ है, अनिल जोशी यहाँ है, और बहुत सारे तजुर्बेकार साथी हैं। जी, मैं जस्ट आपसे आग्रह करूंगा, आप आई नो, या आप सभी जिसको भी प्रश्न पूछना हो या जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करें और हमारी टीम आपको अनम्यूट कर देगी। वैसे भी हमने अनम्यूट करने की आपको फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन सभी एक साथ अनम्यूट नहीं करें। ओके, सो प्लीज एनीवन प्लीज कम अप विद योर थॉट्स, योर विचार from even from the audience here, कि आप विचार आ रहे हो जो अगर हम बातचीत करें कि अगर डिसेबिलिटी और मेंटल हेल्थ का रिलेशनशिप कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं एक समावेश अगर जैसे, तो उसमें कहाँ में कोई होती है कहीं जो डिसेबिलिटी हो जाती, बहुत सारी मेंटल हेल्थ इसके कारण डिसेबिलिटी हो जाती है, सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, उससे कोई बातें करते हो, तो ये जो यूपीआई कार्ड है कब मिलेगा? अभी तो मेरे पास कोई कॉल तक नहीं आई है इस चक्कर में। मैं कहने ही वाला था कि जब हम मशवरा या बाकी पहले ऐसे सेशंस करते थे, जब मैं इबास में था, तो बहुत सारे सवाल और टिप्पणियां हो जाती थी दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन नहीं हो पाता है, डिले हो जाता है, कार्ड कैसे मिलेगा। तो अब मैं सरकारी पोजीशन पर इबास में तो हूँ नहीं, तो ये सिचुएशन बदल गई। लेकिन आद्या, अगर मैं आपका मुद्दा सही समझा तो आप बात कर रहे हो कि सर्टिफिकेशन और यूडीआईडी और उससे संबंधित जो बेनिफिट्स हैं वो जल्दी मिलने चाहिए, अभी तक आसानी से नहीं हो रहा है। करेक्ट? डॉक्टर आलोक और इन साथियों में सीखा, एंड दिल्ली में चलता है, हर राज्य में, बड़ा देश है हमारा। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक ढांचे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स हैं, समाज कल्याण विभाग हर राज्य का या डिस्ट्रिक्ट फोरम्स
या अस्पताल, उसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को और परिवार को बहुत दिक्कत हो रही है तो राज्य में जो डिसेबिलिटी कमिश्नर है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। डिसेबिलिटी कमिश्नर जो हर राज्य में है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर करने के लिए, कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, इवन ईमेल से चल जाएगा। तो मेरे सिर्फ एक ही मुद्दा है सबसे बड़ा कि अगर अगर मुश्किल हो रही है तो अस्पताल में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बात करें। कुछ बड़ी मुश्किल आ रही है व्यक्ति विशेष को या किसी एक ग्रुप को, समूह को, तो स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर से जरूर अप्रोच करें। क्यों आलोक? करेक्ट? मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हमारे अधिकार को मिलने का। आपकी आवाज आएगी कुछ आलोक? I think he lost his connection. Right. Dr. Sagar wants to add something. My friend, psychiatrist friend from Kerala. And then, of course, we have Dr. Kajri Sasmal. Sagar, you want to unmute yourself? Yeah. Yes, sir. So, good afternoon. Thank you very much. I would like to appreciate, organizers and Professor Dr. Nimesh Desai, sir, for, this wonderful program. Let me have a comment on something related to mental health. Sir, our Recording country, actually, when this World Mental Health theme is, mental health is a universal human right. See, recording in progress. Affordable, accessible, etc. Our government has launched the district mental health program to reach the unreached, and we have to increase the human resource in mental health. We have 10,000 plus psychiatrists, or 4,000 around clinical psychologists, 4,000 around psychiatric social workers. So still we need more professionals in order to cater to the needs of the various mentally ill persons, neurologically ill patients, etc. Of course, government is hope government is in the right direction to provide some more funds for that, and government has increased the seats, PG seats for MD and all, with MD psychiatry and all, and I'm sure in the near future we'll be getting more and more mental health professionals, especially in view of the Mental Health Care Act 2017. We have to uphold the rights of the mentally ill persons by way of providing adequate care at the right time. And of course, the MSP is a very good program that enables the needy mentally ill person to have access to treatment, free medication, free consultation, etc. And we have the telemedicine 14416. That is a telephone number. By dialing this number, anyone can have this consultation, maybe counseling service. Again, a support to that's all, sir. Thank you so much for giving me the opportunity. Thanks. Dr. Kajri, have Dr. Alok. Can you hear me, sir? Please. Would you mute yourself? Yes. Can you hear me, sir? Yes. This is Dr. Kajri Sasmal from Kolkata. I'm a special educator and mom of a special child. So according to me, give him medicine. And another thing is that in most of the cases, even we include the persons with disability, they are spectator. We cannot make them participate. They don't have any value social role. So we need an inclusive society. We have to give them a particular role. Maybe the role is not that much important. Maybe that role will be little. But if we give them a social role, so people will value them. They will have their self-respect, confidence. And I think the mental health issues will be little bit less. Thank you. That's all from my end. No. Alok, before you come back to respond to what Dr. Ajay raised,
let me say to briefly to what Dr. Kajri has registered and what Sagar said. Yeah, so I think what Dr. Sagar said is important. All of you working with persons with IDD and other disabilities and their families, do please remember that Government of India and all states now claim, at least on paper, that every district has a functional district mental health program in the district hospital. Okay. Now I say this with responsibility again. It is claimed that it's there. A lot of other feedback comes along that it's actually not there on ground, whatever. I mean, that's one part of what happens in countries like ours, right? Big ones. But most districts you will find at the district hospital, if you try and ask, this mental health team with a psychiatrist, with clinical psychologist, social worker, with beds for admission if required, rarely, and whatever other services for this interface. So just keep that in mind. And very recently, this Telemanas program that again Dr. Sagar referred to. So there is a national helpline number, and every state there is a mental health telecounseling service available. That's only about what Sagar said. And unfortunately, as Dr. Alok and Gupta Sahib and many of us have realized, lack of information is prevalent even amongst professional teams. So we consider it useful to keep repeating this with every team working with disability and every parent, every professional, that avail of the only funded mental health services available to the extent, most people may not be able to pay for the private sector. About what our friend was saying in the end, well, okay, you will agree. See, in fact, I've been thinking since the morning, are mental health issues or mental health problems and their solutions different for the disabled persons and their families? At one level, the answer would be no, it's the same. Like it happens in any other part of the society, there'll be people with severe mental disorders who might require hospitalization or hospital treatment. There'll be some who will have depression, anxiety. There'll be some who have adjustment disorder. Unfortunately, the reality world over, सच्चाई ये है कि दुनिया भर में और हमारे जैसे देश में सच्चाई में स्वीकार करनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा बदलते हुए समाज के साथ और ज्यादा जो आम जनता की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं दिव्यांग जनों और उनके परिवार में, वो तो है ही है, उससे और ज्यादा हो जाती है नंबर्स में और फ्रीक्वेंसी में और इंटेंसिटी में, बहुत सारे कारणों को लेकर, खासकर जैसे हमारे साथी ने कहा जो सामाजिक अवहेलना होती है उसके कारण। और तीसरा पहलू ये भी है कि अक्सर जो प्रोफेशनल टीम्स हैं, एडवोकेट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी शायद ये एहसास नहीं होता है कि यहाँ दिव्यांग स्थिति की मदद और उनके हक दिलवाने के साथ साथ प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ अप्रोच भी जरूरी है। सो अवेयरनेस इवन अमंग्स कंसर्न्ड प्रोफेशनल्स, टीम्स एंड एडवोकेट्स एंड फैमिली मेंबर्स। तो 3 लेयर मुझे दिखा दो। 1, जिस तादाद में जिस हद तक आम समाज में होती है मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, वो होती है इन व्यक्तियों और परिवारों में भी। दूसरा, उससे ज्यादा होती है सामाजिक पहलुओं को, कारणों को लेकर। और तीसरे, उसके बारे में अवेयरनेस और कम होती है या झिझक होती है मानसिक स्वास्थ्य की सेवाओं को अवेल करने से, वहां तक पहुंचने में। वो झिझक क्यों होती है उसके थोड़े कारण है। But Alok, you were saying something to Adya's thing about UDID, please. Yeah, I was talking that the UDID is of any facilities or any provisions from the government or any sector. So this is good, but once we think about the how I feel to take this, कि हमें वो चाहिए या नहीं चाहिए, क्या जरूरी है, हमारे पास अगर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं फिर भी हम सरकार की वो सुविधा लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें सोचना चाहिए कि क्या हम उस सर्टिफिकेट का उपयोग कैसे करें। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, कि सर्टिफिकेट तो है और बहुत बार ऐसा होता है कि उस सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता नहीं होती, बहुत बार हमें उस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर भी मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा मानसिक सोच जो है, जो हमारा एटीट्यूडनल एक बना हुआ एक धारणा है,
कि हमें सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, तभी ये सुविधा लेंगे। और बहुत ऐसे जगह पे होना चाहिए कि अब हमारा सुविधा की जरूरत नहीं है, अब हमारी सर्टिफिकेट को वापस ले लो, ऐसा भी तो होना चाहिए, वो सुविधा किसी और को दे दो। दैट इज वंडरफुल। दो विचार आपने मुझे लगता है जो रखे, उसमें से मैं निचोड़ निकालता हूँ। दूसरा तो बहुत ही अहम है, हमने कभी कभार बात की है मशवरा में या वैसे ही, लेकिन पहला मुद्दा है कि अक्सर अक्सर, और ये किसी की गलती या कमी नहीं है, शायद हमारे बदलते हुए समाज में अभी भी बहुत सारे स्थिति में परिवार संतुष्ट हो जाता है सर्टिफिकेट पाके। तो इसको अगर पॉजिटिवली आप और हम जो दोनों कह रहे हैं कि ना सिर्फ यूडीआईडी नंबर लें, सर्टिफिकेट लें, लेकिन उसका जितना जितना बेनिफिट्स या फायदा मिल रहा है सरकारी स्कीम्स में, बाकी जगह, उसको अवेल करें। सिर्फ सर्टिफिकेट लेके बैठ जाके, इट्स नॉट द एंड इन इटसेल्फ, अंग्रेजी में अगर कहें, राइट। बट सेकंड व्हाट यू सेड इज इवन बेटर। और ये मुझे बड़े समय से मेरे निजी सोच है, इंडिविजुअल थॉट रही है, जैसे जैसे प्रधानमंत्री ने किया ना उज्ज्वला में, कि भाई जिस महीने के बाद 2 सिलेंडर वो एक गिव अप करे और किसी परिवार को, महिला को मिले, अगर वही मॉडल लागू करें, अगर हम सबलीकरण कर रहे हैं, अगर हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं, तो क्या कुछ चाहे छोटे नंबर में, छोटे परसेंटेज में ऐसे व्यक्ति परिवार नहीं होने चाहिए 5-10 साल के, 15 साल के अनुभव के बाद, जो कहें कि अब हमें बेनिफिट्स मिल गया, अब हमें ये नहीं चाहिए, आई गिव दिस अप, लेट दिस गो टू समबडी एल्स। बहुत 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 उम्दा विचार है। गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे साथ। गुप्ता जी सर। मैं एक तो बात ये कहना चाह रहा था कि जो डिसेबिलिटी है ना, ये स्टेट एंटिटी है। तो अभी जो हमारे कानून बनते हैं भारत के लेवल पर रिगार्ड टू, चाहे वो यूडीआईडी है या जो भी सुविधाएं हैं, वो स्टेट कहता है कि मैं अपनी सुविधा के अनुसार दूंगा, और वो उस कानून के अनुसार उनके यहाँ नॉर्म्स ही नहीं बन पाते हैं, शेड्यूल्स ही नहीं बन पाते हैं कि जिनके अनुसार वो सर्टिफिकेट इश्यू कर पाए। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि जो कानून बनाते हैं वो शेड्यूल्स भी तैयार करके दे साथ, और दे शुड हेल्प समबडी रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द शेड्यूल्स। किस डिसेबिलिटी में कितनी डिसेबिलिटी होने से उनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा या हाई सपोर्ट नीड सर्टिफिकेट। तो ये बहुत जरूरी है। जब ये हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली यूडीआईडी बन जाएंगे। अभी बहुत सारे, जैसे मान लीजिए दिल्ली के अंदर कुछ हॉस्पिटल हैं, अब वहां पर उतने साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो आपको आईडी के बारे में, आईडी के संबंधित सर्टिफिकेट इश्यू कर सके। तो ये एक समस्या हमारे यहाँ बहुत रहती है कि लैक ऑफ प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा है, बहुत जबरदस्त है। नंबर दूसरा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ओन्ड बाय द स्टेट, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। थैंक यू। सही है गुप्ता जी, लेकिन मैं इतना कहूँ, दिल्ली में ना हम लोग जहाँ कार्यरत हैं, दिल्ली में फिर भी स्थिति और राज्यों से बहुत बेहतर है सर। दूर दराज के राज्यों में और कुछ कस्बों में तो जैसे आपने सही कहा, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो वही हम तीनों जो मुझे लगता है इत्तेफाक करेंगे, अगर हम ग्रुप को कहें कि जहां जहां बिल्कुल कहीं गैप है या मुश्किल है, वहां जो डिसेबिलिटी कमिश्नर है, जो दिव्यांग जनों के हक के लिए, हाँ, जो कानूनी रूप से आयुक्त मनोनीत किया जाता है ना, और उसको कोर्ट के पावर्स होते हैं, आप जानते हो, हम तीनों जानते हैं। सर। हाँ, डिसेबिलिटी कमिश्नर है, उसको कोर्ट के पावर्स रहते हैं, तो वो सरकारी अस्पताल को, किसी संस्थान को भी मदद कर सकता है किसी एक परिवार की या किसी मुद्दे पे। हाँ सर, बट आई लाइक व्हाट यू सेड आलोक, दैट्स वंडरफुल। आई डोंट और किसी की कोई सोच है इसके बारे में, व्हाट यू सेड इज वेरी नाइस। शुड एम्पावरमेंट, इनफैक्ट मुझे अक्सर रहा है, खासकर मानसिक बीमारी में। बट और किसी का कोई विचार हो तो अभी मैं एक चैट में पढ़ रहा था कि if any mental intellectual disability or any the behavioral issues are overlooked, that persons become mentally ill. अगर हम उसके व्यवहार को मैनेज नहीं कर पाए समय पर, या फिर हम उसको उचित दवाई ना दे पाए। इसके साथ साथ एक और मुद्दा जो इस हमारे चैट में लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि आप मेरे नाम से मत पूछिए, तो मैं नाम से नहीं पूछ रहा हूँ, कि कभी कभी माता पिता भी ऐसे होते कि वो खास करके ऑटिज्म के केस में, सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के केस में और लर्निंग डिसेबिलिटी के केस में, कि वो बच्चे को अगर मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है भी,
तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो कहते नहीं नहीं मेरा बच्चा तो पागल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये आपने हमने आपको याद है एक दो बार ये बात उठी है हमारे ग्रुप डिस्कशंस में, अलग अलग कारणों को लेकर, लेकिन खासकर ये जो डिनायल है, माँ बाप या अभिभावक ये ना माने कि मेरे बच्चे को कोई समस्या है, और वो जो समय लग जाता है 5, 10, 12, 15 साल या उससे भी ज्यादा कई बार फैमिली को स्वीकार करने में कि इस व्यक्ति को कुछ तकलीफ है, कुछ स्पेशल सिचुएशन है जिसके बारे में डॉक्टरी और प्रोफेशनल मदद की जाए, कानूनी हक मिले। अब बहुत नाजुक है। क्या ऐसी सिचुएशंस में किसी अच्छे नागरिक को क्या ये हक बनता है कि कानूनी रूप से उस परिवार को दायरे में लाया जाए, है ना? तो ये बड़ा नाजुक हो जाएगा, क्योंकि लेकिन मैं इससे थोड़ा हट के और बात करना चाहता हूँ। हमने ये भी बात की है अक्सर। एक मेरा विश्वास है कि अगर हम ये मान के चलेंगे कि भारतीय समाज में परिवार हमेशा ही पॉजिटिव रोल प्ले करता है या हमेशा ही मदद रूप होता है, तो ये गलत फहमी है, अवहेलना या एक्सक्लूजन हो जाता है। और जैसा मैं बहुत बारी बात किया, लोग ओवर प्रोटेक्शन इज वन थिंग। सी इनफैक्ट एक विरोधाभासी दो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं ना हमारे समाज में। दिव्यांग व्यक्ति की माँ या एकादा परिवारजन पूरा अपना जीवन बिता देता है त्याग की भावना में और पूरा उसकी मदद करने में, और तो दैट कैन बिकम डिसेबलिंग। इनफैक्ट वो दिव्यांग स्थिति को या डिसेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो अगर हमें 21वीं सदी में वैचारिक स्तर पे अगर हमें सबलीकरण को, सशक्तिकरण को मानना है, तो थोड़ी सी जो पुरानी सोच है उसको शायद बदलना होगा कि उस व्यक्ति के लिए सभी कुछ कोई परिवार का व्यक्ति करे। दिव्यांग जन जो है उसको सेल्फ रिलायंट, स्वावलंबी बनाने की जो कोशिश है वो शायद कुछ परिवारों में नहीं हो पाती है। ये मुद्दा है। दूसरा, जो किसी साथी ने कहा कि ब्लाइंड स्पॉट रहता है, जो मैंने शुरू में रेफर किया था, ये प्रॉब्लम है। और सच बताऊं, जब मानसिक ये शुरू हुआ ना सर्टिफिकेशन, नए कानून से पहले भी मैं बात कर रहा हूँ 2005, 6, 7 की, तो इबास में जब ये शुरू किया गया कि अच्छा भी मानसिक बीमारी से संबंधित जो एटलीस्ट लंबे अरसे की है, जहाँ व्यक्ति सच में दिव्यांग स्थिति में रह जाता है, हमने जब बोर्ड करके सर्टिफिकेट शुरू किया, हमारे कुछ साथियों ने बहुत चर्चा की और मुझे विरोधाभास लगा था मानसिक बीमारी के संबंध में कि एक तरफ तो हम साइकियाट्री और मेंटल हेल्थ की तरफ से कम ये दावा करते हैं डंके की चोट पे कि ज्यादातर मानसिक बीमारियों का न सिर्फ इलाज संभव है, इलाज और रिकवरी इस कदर संभव है कि 95-98% लोग, 100 में से 95 या 98 लोग अपने जीवन शैली को वापस जा सकते हैं मानसिक बीमारी के इलाज के बाद। तो एक तरफ तो हम ये दावा करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मानसिक बीमारी से संबंधित दिव्यांग स्थिति भी हो। लेकिन जो समाज तक और पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाना जरूरी है और हमारे जैसे मिक्स ग्रुप को समझना जरूरी, वो ये है कि जो मैं तीसरा मुद्दा कहा था मेरे 3 मुद्दों में से, मानसिक बीमारी से संबंधित डिसेबिलिटी या दिव्यांग स्थिति की जो मुद्दा है वो बहुत नाजुक है और 2-3 पहलू है उसके। हम अभी भी ये चाहेंगे कि समाज में चेतना और जागरूकता ये फैले कि मानसिक बीमारियों का इलाज हो, व्यक्ति विशेष अपने जीवन शैली में नॉर्मल चल जाए जैसे हो था। जो 100 में से 1 या 2 या 3 जने भी अगर है मानसिक बीमारी के जिनको डिसेबिलिटी बेनिफिट्स की जरूरत है, उनको जरूर जागरूक करवाया जाए, उन तक वो पहुंचाया जाए। तो यहाँ फर्क हो जाता है जो बाकी डिसेबिलिटीज है ITD की और मानसिक बीमारी में, यू नो। आद्या इज सेइंग करेक्ट पॉइंट। हाँ जी सर। या एक चीज यहाँ पर एक सेल्फ एडवोकेट ने लिखा कि क्या स्टेप्स हो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाए, तो व्हाट शुड बी द स्टेप्स फॉर द ट्रीटमेंट। और हाँ, ये मैं आऊंगा, ये मैं थोड़ा आज प्लान कर रहा हूँ सेकंड सेगमेंट में कवर करने की, जो इस वार्तालाप के बाद जो मैं थोड़ी कोशिश करूंगा। आई होप आई विल आंसर दैट कि कैसे हो। श्योर। सो उसके लिए फिर थोड़ा धीरे रखें।
हमारे नवी बुल्लर साहब ने लिखा है, पंजाब डिसेबिलिटी कमीशन इज अनेबल टू फंक्शन एज द ऑसी ऑर्डर, डिसेबिलिटी कमीशन मस्ट बी ए पीडब्ल्यू। ओ, तो पंजाब की एक और समस्या है कुछ कि सर्वोत्तम न्यायालय ने ये कहा होगा किसी केस में, मैं समझाऊं कि भाई डिसेबिलिटी कमीशन खुद एक पर्सन विद डिसेबिलिटी होना चाहिए, तो डिसेबिलिटी कमिश्नर ऑफिस डिसफंक्शनल है। पंजाब की स्थिति है। आद्या वर्मा says UDID is required for registration in national trust, not for financial benefit. Actually, हाँ पता नहीं, मतलब आलोक आप बताओ, टैक्स बेनिफिट्स और उसके लिए चाहिए नहीं है UDID? अगर चाहिए चाहिए हाँ, चाहिए, हर चीज के तो लिए UDID चाहिए। अगर हम कोई भी चीज, कोई भी बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, चाहे वो निरामया कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, चाहे हम बस कंसेशन लेना चाह रहे हैं, हर चीज के लिए UDID चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, बिना UDID का नहीं होगा। और इसीलिए UDID चाहिए कि जो सरकार के पास बेनिफिट है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। हाँ, ऐसे तो कहा जाए तो हम सभी में कोई ना कोई कमी है, लेकिन वो जो कमी है वो कितने प्रतिशत तक है। अगर किसी की कमी 40% से ज्यादा है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना है कि आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये कानून में लिखा हुआ है। तो इसीलिए सर्टिफिकेट तो हमेशा चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बोलो प्लीज सर। एक मुद्दा जो बहुत ही अच्छे से लग रहा है मुझे, कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पर जो भी, मतलब चाहे वो स्पेशल स्कूल से पूरे कंट्री में, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, या फिर बहुत सारे ऐसे अभी जो इंक्लूसिव स्कूल के कंसेप्ट में बहुत सारे ऐसे जगह पर इंक्लूजन स्टार्ट हुआ है। वहां पर अगर बच्चे से पूछा नहीं जाए, उसके चॉइस के बारे में नहीं पूछा जाए, उसके पसंद नापसंद के बारे में ना पूछा जाए, उसको क्या चाहिए नहीं चाहिए ये ना पूछा जाए, तो क्या वो आम व्यक्ति भी हो, चाहे मैं तो डिसेबल व्यक्ति के बारे में बाद में बात करूंगा, आम व्यक्ति भी अगर उसके पसंद से नहीं अगर कुछ करें तो कहीं ना कहीं उसको एक डिप्रेशन या कहीं ना कहीं एक मानसिक जो है प्रॉब्लम होता है। और खास करके जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, यहाँ पर जो मैं प्रायः पिछले 25-30 साल में मैंने जो देखा है अपने करियर में, कि माँ बाप के पास भी समय नहीं होता, वो जल्दी जल्दी बच्चे को नहलाया, जो पहनना था पहनाया और स्कूल तक पहुंचाया। स्कूल में जब बच्चा आया तो टीचर क्या करती है, उसके पास एक पूरा प्रेशर है कि हमें आज ये पढ़ाना है, टीचर भी बच्चे को फटाफट पढ़ाया और चले गए। और इनफैक्ट फिर वो बच्चा घर गया, घर में भी वही हाल। तो उस बच्चे से कहीं ना कहीं उसकी कुंठा के बारे में कोई नहीं पूछता कि क्या है, और उनके कुछ अच्छे दोस्त भी नहीं होते। मैं पिछले दिनों एक एग्जांपल शेयर करूंगा कि हमारे पास सेल्फ एडवोकेसी टीम बनी। उसमें से एक टीम मेंबर ने, सेल्फ एडवोकेट्स ने कहा कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, मैं घर से निकलना चाहती हूँ, नहीं कुछ हो सकता है, तो मेरे मम्मी पापा जाने नहीं देते, या मेरा बहुत सारा इश्यूज है। तो उसी में से एक सेल्फ एडवोकेट बाहर निकल के बोले कि चलो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को समझाऊंगी, देखो मैं तो बहुत सारा घूमती फिरती हूँ, हर जगह जाती हूँ, तो मैं बताऊंगी कि बड़ा अच्छा होता है, कोई बड़ा ही आसानी से तुम घूम सकते हो। तो इस तरह का भी एक विचार है जो बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे से अगर ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो आधा प्रॉब्लम तो वहां पर ही शॉर्ट आउट हो जाता है। यस, बहुत सही कह रहे हो। जो मेंटल हेल्थ के इंजन सारी बट जो हमारे जो साथी हैं, जैसे हमारे दिव्यांग जनों के लिए सेल्फ एडवोकेट हो, उनके लिए एक दूसरे की जो मदद हो, वो बेस्ट है। पॉइंट सर। Seeing that Mr. Anil Joshi sir, you want to say something? Anil ji, UDID card is the mandatory now. Sir, actually, UDID card has become compulsory. सबके लिए अभी compulsory किया है। लेकिन आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो स्कीम के तहत अनाउंस किया था कि जिस स्पीड से ये होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनको भी, और जो नए अराइवल्स है, नए सर्टिफिकेशन हो रहे, ताकि इनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और एनालिसिस
होगा गवर्नमेंट के पास। कल या 2-4 दिन पहले की बात है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ड्रॉप दैट बिकॉज द स्कीम रियली कुड नॉट कैच अप द एक्सपेक्टेड स्पीड। अभी भी हम लोग 30 या 33% डिसेबल्ड लोगों तक ही पहुंच पाए हैं। करेक्ट सर। दैट टू एज पर 2011 सेंसस। करेक्ट सर। We do not know what is the exact number of persons with disabilities after the RPWD Act was passed to increase and enhance the scope of it. तो कहीं तो मेरा ऐसा फीलिंग है कि more sincere efforts are required, whether we talk about the state governments cooperating or not, or making it more effective as a central scheme. Because if we do not know कि हमारे पास हमारी पॉपुलेशन में कितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, तो हम तो स्कीम सिर्फ अनाउंस कर रहे हैं, उन तक पहुंच नहीं रही सर। वेरी ट्रू सर, आई एग्री। और मुझे आपने जो कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर्स हैं, एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। आज से 8 साल पहले से गवर्नमेंट ने ऑन पेपर अनाउंस किया था, मैंने सवाल पूछा था तो बोल रहे थे कि नहीं, वी हैव डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, whereas actually on the ground not even 10% of the districts having fully functional district early intervention centers. And now if we are talking about early intervention, तब 10 साल पहले जो बच्चे पैदा हुए थे वो तो they are now out of the ambit of early intervention. Right. Correct, sir. So we are killing the generations. That's true, boss. By not addressing their basics. This is very, very disgusting. Very frankly, I mean, I was thinking whether I should be saying these things. Now, last point which I have written in my comment, because of all these things, mostly the parents, because I work with thousands of parents in counseling and mentoring, and even the primary caregivers have started developing the mental health issues because of anxiety about the future of their children, or many of them getting into depression. So, बहुत अच्छा हुआ कि आज हमने mental health ये topic लिया है. So it is not just for the patients who are identified, but there are many, many parents who are on the borderline, who definitely need help of a psychiatrist or even counselors to help them cope up with their situation. So thank you. I'm done. Sir, unmute Hello. yourself. Unmute yourself. क्योंकि आपने अपने आप में बहुत अपने आप में सक्षम बातें की है, लेकिन एक मजे से ये सोचता है तो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटीग्रेशन अभी भी नहीं हो रहा है। DDRC, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, DMHP प्रोग्राम, वो इंटरेक्शन हो। और मोटे तौर पे मैं आपसे बहुत सहमत हूँ खेद के साथ कि बहुत सारे दिव्यांगजन और उनके परिवार, खासकर अभिभावक, पेरेंट्स, जीवन भर मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफ से गुजरते हैं। ना उनको एहसास रहता है कि उनको मदद मिल सकती है, ना ही मदद उन तक पहुंचती है। आप और हम लोग जो कोशिश करते हैं वो बहुत लिमिटेड रहती है अभी भी। ये सच्चाई है सदैव। मुझे एक फिक्र हुई, अगर मैं सही सुना समझा, अगर आप ये कह रहे हो कि सरकार ने पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हम UDID कंपलसरी होना ड्रॉप कर देंगे। नहीं, कंपलसरी होना ड्रॉप नहीं करेंगे। इसमें से जो प्रोविजन था, जो पहले स्कीम थी कि दिस डेटा वंस इंटीग्रेटेड will help the government possibly allocate more funds. So now I will forward that message to you. This is worrisome because then we do not really have hopes about government being serious about the actual need versus what is being done at present. Whether it is through various schemes, or any way we can reach out to
the people who are supposedly coming सही कह under रहे the हो bracket. सर। मुझे एक और संबंधित लेकिन थोड़ा अलग विचार सुनता है, आप सबके सामने रख दूं, खासकर अनिल जी, आलोक गुप्ता जी और बाकी हमारे अनुभवी साथी हैं, और बाकी सबके लिए सोच के लिए, और जितना हम कर सके, जैसे अनिल जी और हम कह रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की जो रिसर्च है अभी तक इंडिया में, उसने इतना जरूर पाया है कि इंडिया में मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफें, मानसिक बीमारियां पाश्चात्य देशों से कम है, 10-12% है प्रेवलेंस, लेकिन ट्रीटमेंट गैप 80% है। तो अगर 100 में से 2 व्यक्तियों को मानसिक बीमारी के लिए निदान और इलाज की जरूरत है, तो सिर्फ 2 व्यक्ति पहुंचते, बाकी 8 नहीं पहुंचते। मैं विचार ये कर रहा हूं कि अगर ये सर्वे आ जाए कि डिसेबिलिटी ऑफ मेंबर्स में मेंटल हेल्थ है और कितना गैप है, तो ट्रीटमेंट गैप 90-95% से ज्यादा होगा, राइट? अनिल जी इज सेइंग फ्रॉम हिज पास्ट ब्रॉड एक्सपीरियंस। तो इसीलिए अनिल जी दोस्त, आलोक और हम लोग और आप सब लोग बड़ा मानते हैं जितना छोटे-छोटे दिव्यांग स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है, इनको कहीं ना कहीं और हर लेवल पे हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक ब्लाइंड स्पॉट रह जाता है, है ना? हेलो, नहीं, majority of the times issues faced by the families of especially intellectual and developmental disabilities are never a part of the disability एक तो ये भी discourse. पॉलिटिक्स है ना सर, लार्जर डिसेबिलिटी सेक्टर में आईडीडी का स्थान, करेक्ट, ये तो आप भी अनुभव कर चुके, मैं भी बहुत कर चुका हूँ, और उसमें बल्कि इन फेयरनेस जो बाकी फिजिकल डिसेबिलिटीज भी हैं, विजुअल, हियरिंग, लोकोमोटर, उनके भी मेरी समझ 20-25 साल पहले थी, अभी भी है, कि बहुत कोई सिस्टमैटिक रिसर्च हम अभी भी दी है और साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट वेलबींग, राइट, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना? तो बहुत कुछ करने को बाकी है अभी, मतलब है ना? ट्रू. So my idea of sharing my views was not to complain, नहीं sir, as much as to highlight the issues which are there on the ground, which we see on day-to-day basis. अरे अनिल जी, 100% यार, many thanks. अच्छा, thank you so much. सर, और कोई विचार है तो आलोक, में तो थोड़ा सा, क्योंकि 4:00 हो रहे हैं। हाँ, जो हम बात कर ही रहे हैं, सॉरी, काउंसलर रिहैबिलिटेशन. Oh, sure, yeah, of course. Yeah, please. Yeah. So, am I audible? Yes. Okay. So, sir, myself Srishti. So, I'm from Urban Care और मैं as a counselor काम करती हूँ ground level पे. हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम strengthen करते हैं families को. तो सर मैं किसी ग्राउंड लेवल पे काउंसलिंग हूँ, तो मैं बहुत सारे केसेस डील करती हूँ जिसमें डिसेबल बच्चे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटी से जो फैमिली जूझ रही हैं वो भी मिलती हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी एक केस से जूझ रही हूँ जिसमें मैं उस बच्चे को सही दिलाने में कोई, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इन स्पीच थेरेपी, तो मेरे लिए थेरेपिस्ट ढूंढना, फैसिलिटी ढूंढना ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं बच्चे की मेंटल हेल्थ पर कैसे काम कर सकूं। सो मैं भी सर से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ग्राउंड लेवल में बहुत कम फैसिलिटीज हमें दिखती हैं, और जब हम कोशिश करते हैं कि हम मेंटल हेल्थ या फैसिलिटीज ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें फैमिली को, तो ऐसी फैसिलिटीज़ अगर इस सेशन के थ्रू मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी मुझे फैसिलिटीज़ के बारे में पता चले, तो मैं बच्चे को लिंक करा पाऊँ और उसकी बेहतर ग्रोथ के लिए काम कर पाऊँ। सृष्टि, you said. Yes, sir. सृष्टि, आपकी सोच बड़ी नेक है, लेकिन एरिया वाइज कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा राज्य है, वो उस पर बात हो जाएगी, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक्स आप ढूंढ रहे हैं यहाँ अभी ना मिल पाए। लेकिन मुझे एक विचार आया आपके विचार सुन के, और अनिल जी जोशी जी जो कह रहे थे उससे,
Again, just to continue the unpleasant negative reality of जो है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ने अब माना है टेलीमानस के लिए, एंड मैं इससे बहुत कन्विंस्ड हूँ बड़े सालों से, कि मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो 3 लेवल पे बात होनी चाहिए। मानसिक बीमारी और उसकी पहचान और उसका इलाज। भाई दिव्यांग जन की स्थिति में इतना ही पहले हो जाए एक बार। सेकंड लेवल जनरल पॉपुलेशन में या हमारी खास जो ये जनता है जिनके साथ आना चाहते हैं, जिनकी मदद कर रहे हैं, हम सब उन्हीं में है। मेंटल डिस्ट्रेस की बीमारी ना हो लेकिन मानसिक तकलीफ है, मानसिक कष्ट है। तो जैसे अनिल जी ने कहा, ये बहुत सारे व्यक्तियों में और परिवारों में। और तीसरा है पॉजिटिव मेंटल वेलबींग। तो वेलबींग कितनी हो पाती है या डिस्ट्रेस कितना कम हो पाता है हमारी मौजूदा स्थिति में होना चाहिए, लेकिन बहुत कम संभव हो। पहले कदम पे हम इतना ही करते हैं कि कम से कम जो दिव्यांग जन हैं, उनके अभिभावक हैं, परिवार के लोग हैं, उनको अगर मानसिक बीमारी है तो उनकी पहचान हो, उनका इलाज हो, जिससे बाकी सबलीकरण जो एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हैं वो थोड़े और सफल हो। बट यस, कोशिश तो होनी चाहिए तीनों लेवल पे, जैसे आम जनता के लिए हो रही है। अपने ही गैप्स है जो अनिल जी ने इस फील्ड के लिए बताया। बट आई रिपीट, अगर एटलीस्ट अपनी समझ, अपनी सोच समझ के लिए और लागू करने के लिए मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल इलनेस और उनकी पहचान, मेंटल डिस्ट्रेस एंड मेंटल वेलनेस, तो मानसिक स्वास्थ्य की सुने इस ढांचे में देखी जा सकती है। पुष्पा डांडिया, इज इट? आलोक, she has raised her hand. Pushpa, please. Oh, somebody has written wrong. Pushpa ji, you need to join with the audio. आपने ऑडियो लंबा कमेंट क्या देते हैं यार, मुझे इतना लॉन्ग पैराग्राफ। राजेश्री मंदोई फ्रॉम, ओके, she has written to me. I'll read out. जब तक पुष्पा जी आती है, I know that many families are troubling the mental health patients. Their rights are ignored by families and other institutions. We have patriarchy and other discriminating practices prevalent. Correct. Women, either they are patients or caregiver family members, they suffer a lot. I have some examples in my own regard. मोटे तौर पे अगर मैं राजश्री जी आपकी बात समझाऊं, जो आपने मुझे मैसेज किया है डायरेक्टली, आई थिंक इसके ग्रुप में नहीं आया। एक तो है जो लिंग भेद की इश्यूज है, gender issues in the care for दिव्यांगजन is a harsh reality, और उसको हम शायद अभी भी तक पूरी तरह पहचान के कर नहीं रहे हैं पूरी मदद। और दूसरा आपने लिखा है एडिक्शन वाला। जो आप कह रही हैं, वो जो राजश्री जी मैसेज में कह रही हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो, एडिक्शन हो और दिव्यांग स्थिति हो, तो ये तो और ही मुश्किल हो जाता है। आई एग्री विथ यू, बट वन मेजर पॉइंट दैट राजश्री हैज रेज्ड, एंड मे बी सम टाइम, मुझे लगता है लोग आज सुबह से मैं यही सोच रहा हूँ कि ये जो हम आज सेशन करें ना, वो हर 1-2 महीने करना पड़ेगा, है ना? अलग अलग हमारे साथी हों, अलग मुद्दे हों, क्योंकि जैसे हम आज एनकरेज कर रहे हैं, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें ज्ञान बांटने का कोई, है ना, मोनोलॉग लेक्चर लेने का कोई मतलब नहीं है। पुष्पा, अनम्यूट करेंगे प्लीज? पुष्पा जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा या मैसेज लिख दीजिए। ओके, सो थोड़ा सा समय ले लें। अगर संक्षेप में, जैसे ऑलरेडी मैंने कही, बेसिकली जो मैं एक लेवल पे अभी भी ये मानता हूं कि ज्यादा संवेदनशीलता के साथ, ज्यादा एक्टिविटी के साथ, ज्यादा एफर्ट के साथ हमें दिव्यांग जन और उनके परिवारों की मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफों को देखना समझना चाहिए। लेकिन बेसिक ढांचा तो वही रहेगा जो आम जनता के लिए है। तो भाई जो 3 लेवल की हमने बात की, एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट में, और ऑटिज्म, एडीएचडी और डिस्लेक्सिया में भी कुछ हद तक, ऑटिज्म में कुछ हद तक, एडीएचडी डिस्लेक्सिया में शायद कम, कुछ मानसिक तकलीफें जो गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, खासकर स्किज़ोफ्रेनिया, उनको होने की संभावना ज्यादा रहती है, प्योरली बिकॉज ऑफ द ब्रेन मैकेनिज्म। तो अक्सर समाज में गलती ये होती है,
ओवरलुक और ओवरसाइट ये हो जाती है कि अगर 12-15 साल का बच्चा है, 5-10 साल का बच्चा है, या वयस्क है 20-22-25 साल का पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, बिकॉज इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, उसको और कोई मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती। उसका बर्ताव बदलने भी लगे तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं या डॉक्टर तक ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये अगर ध्यान में ना हो तो प्लीज गौर करें और आम जनता तक पहुंचे, अपने काम में ख्याल रखें। स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर जैसी जो गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, जिनको पहले साइकोसिस कहते थे, वो भी उतनी तादाद में, जितनी आम जनता में या उससे ज्यादा तादाद में हमारे आईडीडी वाले दिव्यांगजनों में संभव है। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे आम जनता में है, उतनी दिव्यांगजनों में, उनके परिवारगणों में, बल्कि असेसमेंट में अक्सर मुश्किल होती है। हमारे क्लिनिक में, अस्पताल में देखें, या आप जो जैसे हमारी एक साथी अभी कह रही थी ग्राउंड लेवल पे जो काउंसलर वर्क कर रही है, इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड डायग्नोज डिप्रेशन, एंजाइटी, समटाइम्स इवन स्किज़ोफ्रेनिया, बिकॉज कम्युनिकेशन कैन बिकम डिफिकल्ट। तो हमें असेसमेंट करते वक्त थोड़ा वो डिफरेंट लेंस या कंसेशन ध्यान रखना पड़ेगा कि दिव्यांग स्थिति के अनुरूप, उनके मुनासिब हम असेसमेंट कर पाए, निदान करने की जब कोशिश करें। स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इवन एंजाइटी, है ना। संक्षेप में ये मुद्दा है। तीसरे, उनकी कंप्लायंस में, इलाज के लिए उनका सहयोग और परिवार का कोऑपरेशन बना रहे, ये भी अक्सर मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जैसे हम सबने हिंट किया है, उस परिवार के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो दिव्यांग जन के साथ उनकी मदद कर रहे हैं, उनको खुद को बोझ बहुत महसूस होता है, बहुत सारा कुछ करने को है, बच्चे को बेनिफिट्स भी दिलवाने हैं, उसकी स्पेशल एजुकेशन भी करनी है, और तो इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। तो ब्लॉक्स जरूर रहते हैं। मैं सच में मानता हूं कि मेंटल डिस्ट्रेस और मेंटल इलनेस, वेलनेस वाला जो सेकंड और थर्ड लेवल है, उसमें बेस्ट मदद हो सकती है ग्रुप्स से। जैसे जैसे मनोविकास में होता है, बहुत सारे एनजीओ में मुझे ध्यान होता है कि अनौपचारिक रूप से तो उन फैमिलीज को एक दूसरे से काफी सपोर्ट मिल जाता है, एक दूसरे से और टीम से। लेकिन जैसे हम लोग डॉक्टर इंदिरा और डॉक्टर आलोक और हम लोग बात कर रहे थे, मे बी थोड़ा जरूरी औपचारिक रूप से भी सपोर्ट ग्रुप शुरू करने का। बिकॉज जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, जिन सामाजिक मसलों से जूझ रहे हैं, और उसके कारण जो विपरीत असर होता है मानसिक शांति पर या मानसिक कष्ट जो पैदा होता है, उसके लिए अगर दवाई या प्रोफेशनल काउंसलिंग जरूरी है, और अगर संभव हो तो वो जरूर हो। लेकिन मोटे तौर पे हमारे समाज में अभी भी एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कि अगर हम फॉर्मल या सेमी फॉर्मल सपोर्ट ग्रुप्स और बना पाए, परिवार के साथियों के, या आलोक आप अपने अनुभव से एग्री करें, इवन फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, है ना। So, साथ आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू रीड दी कमेंट्स हियर, बिकॉज समहाउ हमारे साथी ना कमेंट लिख रहे हैं मुझे डायरेक्ट मैसेज में, ग्रुप में ना लिख के। हाँ, तो गड़बड़ हो रहा। अच्छा, नवबुल्लर जी इज सेइंग कि डायरेक्ट मैसेज टू ओनली पैनलिस्ट इज अलाउड। देखना है जरा नेक्स्ट टाइम। एनीवे, मैं जो लिखा है दो साथियों ने sir, what are the psychosocial and clinical issues faced by persons with disability in the current scenario in India? Any unexpected areas which can be researched? शरण, पहली बात तो रिसर्च एरिया में ट्रीटमेंट गैप या आइडेंटिफाई करने में जो दिक्कत होती है, या जो ब्लॉक्स होते हैं परिवार की तरफ से, या मैं ये भी कहूँ इवन साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ टीम की तरफ से। भाई, जब ऑटिज्म वाले व्यक्ति को या इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट वाले व्यक्ति को ले भी जाते हैं क्लिनिक या अस्पताल, तो न सिर्फ समाज और परिवार अक्सर ये गलती कर बैठता है, लेकिन प्रोफेशनल्स भी गलती कर बैठते हैं कि उन दो तीन परिस्थितियों को अलग अलग पहचाना जाए। इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट या ऑटिज्म है, ऑटिज्म के साथ अगर स्किज़ोफ्रेनिया सेट इन हो रहा है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो ये मानसिक तैयारी और नजर खुली रखना, दिमाग खुला रखना कि बिकॉज कोई आईडीडी स्थिति है इससे मानसिक बीमारी नहीं हो सकती है, ऐसा तो कतई नहीं है। बल्कि असेसमेंट अक्सर मुश्किल हो जाता है और हम लोग जाने अनजाने में उसको मिस करके ओवरलुक कर जाते हैं।
Now Buller is saying something else also. There should be an option to message everyone. हाँ, ये देखना जरा, right? ये शायद ना बुलर साहब ये कह रहे हैं कि apparently अभी जो हो रहा है उसमें only direct message to panelists is possible, not to the whole group. Okay. और we have opened it. Okay, right. Yeah. Right. Okay. Oh, great. अच्छा. क्योंकि है ना, अगर give me half a minute. Sorry, somebody has come in, तो मैं जरा पूछ के आऊँ है क्या किस्सा. Yeah, please continue करें अगर. As you were saying, sir, about the family network and family support system, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, and then whoever in with our, the virtually who are connected. So I would like to tell you that we have the Manovikas family network. In that family network, you can talk each other. This is the WhatsApp group, as well as this group has a very strong network to support system in terms of the counseling, in terms of any help. So there are a lot many parents, professionals, everyone are there. From my office, I will request Pooja to give the link to join the Manovikas family network support system. So that will be very good. Here, I'll tell you that in the family network, we have little more, the analytical system. कि कौन व्यक्ति कौन सा सपोर्ट कर सकता है, क्या कर सकता है. आप अगर फैमिली नेटवर्क में आए हैं तो कोई हो सकता है कि उस व्यक्ति से बात ही कर सकता हो, या हो सकता है कि कोई ऐसा हो उस वहां पर कोई उसको हेल्थ सपोर्ट दे सकता है, या फिर कोई एजुकेशन सपोर्ट दे सकता है, या कोई मेंटरिंग कर सकता है. तो इन सारे चीजों को लिखने के लिए, इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के लिए हम एक फॉर्म आपको शेयर कर रहे हैं. हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी, and then we will add you in the family Manovikas family network support group. And even those who are sitting here who wants to support someone, क्योंकि मैं किसी को सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ मेंटरिंग कर सकता हूँ, तो you must join the Manovikas family network group. That is very helpful. इतना कह दूं इस कंटिन्यूटी में आलोक जी कि जैसे मैंने शायद हिंट किया, अक्सर होता ये है कि किसी भी कल्चर में, खासकर हमारी संस्कृति में, जब बहुत अच्छाइयां हैं, एक शायद वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हो संभव ये है कि जो दिव्यांगजन है उसके अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, वो शायद ब्लाइंड स्पॉट तो एक होता है कि उनको मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफें या जरूरतें, जो नीड्स है, वो खुद में या दिव्यांगजन में दिखती नहीं है. दूसरा, अगर दिख भी जाए तो हम कहते हैं यार बहुत कुछ है करने को, इसको छोड़ो बाद में करेंगे. तो ये ना करें, क्योंकि जो दिव्यांग स्थिति है, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की, ऑटिज्म की, उसके लिए जो भी हम रिहेबिलिटेशन, एम्पावरमेंट और इंक्लूसिव सोसाइटी उस व्यक्ति के लिए और समूह के लिए करना चाह रहे हैं, उसमें अवरोध बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर है एक व्यक्ति के लिए या ज्यादा के लिए. तो आई होप आप इसको सोचें और अमल करें कि माइक्रो लेवल पे एक व्यक्ति विशेष और परिवार, मीजो लेवल पे जैसे मनोविकास जैसा परिवार है, या नेशनल लेवल पे हमें हमारे मन के किवाड़ थोड़े खोलने पड़ेंगे कि दिव्यांग स्थिति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की या मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफों की जरूरत हो सकती है और होती है, और उसको हम अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं. और वो करके हम जो बुनियादी मदद कर रहे हैं दिव्यांग स्थिति के लिए, वो भी पूरी सफल हो पाती है. Again, I want to read out Rajeshri Manloi has written. राजेश्वरी जी कुछ और बात कर रही है, लेकिन मैं उसको जो उसका नहीं राजेश्वरी जी संक्षेप में बता दूं, और ये महत्व की बात है. राष्ट्रीय स्तर पे और हुआ है, जो भारत में लागू हो गया कि कन्वेंशन है फॉर डिसेबिलिटी, इंक्लूडिंग मानसिक बीमार व्यक्तियों के लिए
एक तरफ तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हर दिव्यांग व्यक्ति को व्यक्ति विशेष का अधिकार और सारे अधिकार हम देना चाह रहे हैं, सामाजिक रूप से, सरकारी रूप, लेकिन साथ साथ जहां इलाज की अगर जरूरत है मानसिक तकलीफ के लिए, मानसिक बीमारी के लिए, तो वहां ये चीज अवरोध कई बार बन जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति अगर न स्वीकार करे और स्थिति में ना हो कि मुझे बीमारी और मुझे इलाज की जरूरत है, तो फिर जो कानूनी प्रोसीजर है वो होने पड़ेंगे। तो मैं जो राजेश्वरी जी का लंबा मैसेज कह रहा लोग वो समझाऊं, वो ये कह रही हैं कि भाई एक अगर व्यक्ति बीमार है तो उसे क्यों पूछा जाता है कि तुम्हें ट्रीटमेंट चाहिए नहीं चाहिए। तो जवाब संक्षेप में ये है कि कानूनी और नैतिक ढांचा जो है अंतरराष्ट्रीय और अब राष्ट्रीय स्तर पे वो क्लियर है। और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, मानव जाति की सोच इस दिशा में है, अच्छी है या नहीं है, गलत है या सही है, ये अलग विवाद है, लेकिन 21वीं सदी में मौजूदा दौर में ये फिलोसॉफिकल पोजीशन है कि कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी के कारण दिव्यांग स्थिति में हो या और कोई दिव्यांग स्थिति और मानसिक बीमारी हो जाए, तो या तो वो व्यक्ति कंसेंट करे या फिर हमें कानूनी प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे कि उस व्यक्ति का बिना उसकी रजामंदी के इलाज होना है। जो अगेन आम जनता में लागू होता है वो यहाँ लागू होगा, और यहाँ शायद और मुश्किल हो जाती है, बिकॉज जैसे बिल्कुल सही कह रही है राजेश्वरी जी, आई थिंक कर रही है। सी अलोक, यू नो दिस मच बेटर देन, मेरे से बेहतर आप जानते समझते हो। भाई किसी को हाई डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है और उसे स्किजोफ्रेनिया साइकोसिस हो जाए, तो उसका इलाज कानूनी रूप से सही ढांचे में कैसे होगा, यू नो, और अगर कोई उनकी तरफ से कंसेंट देने वाला ना हो। तो ये एक जो नया कानून आया, मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था सबसे, जो 2017 का मेंटल हेल्थ कह रहे हैं, उसमें प्राविधान है, लेकिन उसमें एवेन्यूज भी हैं, तरीके भी हैं कि ऐसे व्यक्तियों का इलाज किस प्रकार से किया जाए, कानूनी स्टेप्स फॉलो करके, लीगल स्टेप्स फॉलो करके। आलोक देखें, और कोई आखिर में विचार हो तो किसी का खास? एक विचार है, हाँ बोलो। शेरोन कुट्टी का कि सर, हाउ टू डायग्नोस हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हु हैव कोमोर्बिड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मतलब the person he has the multiple disability including the hearing and speech impairment and intellectual disability. So एक तो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, और खासकर ऐसे केसेस में वार्ड एडमिशन कुछ दिनों के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए या थोड़े समय के लिए बड़ा यूजफुल होता है। जो ओपीडी कंसल्टेशन से काम बाकी बहुत सारे केसेस में हो जाएगा, वो यहाँ थोड़ा और मुश्किल होगा। अक्सर हमने पाया है कि बस ऐसे संस्थान में भी, और अगर फिर भी राइटिंग स्किल्स या साइन लैंग्वेज पॉसिबल है तो बहुत सारा जिसको हम कहते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो उन मेथड के जरिए भी हो जाता है। जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जबानी किया जाता है आमतौर पे, वो ऐसे दिव्यांग स्थिति में लेटर पेपर पेंसिल से भी हो जाएगा या साइन लैंग्वेज से हो जाएगा। लेकिन बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन एक आखिरी है। देखिए, जैसे आप जब समझते हो, एक बार फिर क्लियर कर दूं, मानसिक बीमारी, इवन गंभीर मानसिक बीमारियों का कोई बायोलॉजिकल टेस्ट तो है नहीं कि ब्लड शुगर या थायराइड लेवल करा लिया और हमें पता चल गया कि अच्छा भाई इनको ये बीमारी है। तो बर्ताव, खुद की रिपोर्ट और जो बातचीत हो सके, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन या बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, इसी से बनता है। तो बात बिल्कुल सही है शरण की कि ये थोड़ा और मुश्किल है और इसी में कई बार मिस हो जाता है। सर विद योर परमिशन, बोलो उतारी, बोलो सर। जहां तक सवाल हेयरिंग का है, हाँ, हेयरिंग के लिए टेस्ट अवेलेबल है, जहां पर वो बेरा टेस्ट कहते हैं, जिसको हम ब्रेन स्टेम इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, वो उसका कराया जाता है। उसमें डॉक्टर के कंसल्टेशन से उनको, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टेस्ट वन हैज टू बी वेरी काम। नहीं माफ करें, बेरा से मानसिक बीमारी नहीं पता चलेगी। नहीं, मानसिक नहीं, वो तो हेयरिंग की बात कर रही थी ना सर। हेयरिंग का टेस्ट हम करा सकते हैं, हेयरिंग का टेस्ट हम करा सकते हैं। कि उसमें मानसिक बीमारी कैसे डायग्नोस करो? बेरा तो है ही, आप सही कह रहे हो। यस, वो आपने सही बताया सर। साइन लैंग्वेज का हम प्रयोग कर सकते हैं अगर वो कर सकता है, या बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। वही सर, है ना, बेरा तो बहुत सही है, सही कह रहे हो आप। हेलो जी सर, एक सवाल मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, या अभी पूछ लो। Parent and child needs psychiatric intervention, not ready to accept.
निशा, अब संक्षेप में कहूं, अगर अगर ऐसी, सॉरी, कैन यू हियर मी? निशा जैन ने ये सवाल पूछा है, तो ग्रुप में है, सर, इफ बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड नीड साइकियाट्रिक इंटरवेंशन नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, इज दैट कंडीशन, हाउ कैन वी हेल्प? आई गेस कानूनी तरीका है लोकल पुलिस। ओके, एक मैं थोड़ा सा मुद्दा कहना चाहूंगा। आजादी के बाद और अभी तक ज्यादातर हमारे सामाजिक सोच में पुलिस सिर्फ कानूनी अमलीकरण के लिए या हमें डंडा दिखाने के लिए है। धीरे धीरे जैसे सामाजिक इवोल्यूशन होती है, इन पहलुओं में पाश्चात्य देशों की सही हो गई है, पुलिस का रोल बहुत सारे ऐसी स्थितियों में भी है जहां वो फैमिली को मदद करे। सो दी सपोर्टिव रोल ऑफ पुलिस हमारे जहन में बैठता नहीं है। अक्सर हम पुलिस को सिर्फ डंडे पर उस हिसाब से देखते हैं जैसे हुक्मरानों के वक्त में देखते थे। तो ये सोच अगर जरूरी हो तो बदलें। आइदर लोकल पुलिस, और अगर एनजीओ हो, खासकर रजिस्टर्ड एनजीओ वर्किंग विद डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ और होमलेस पीपल, बेघर व्यक्तियों के साथ, तो 2017 के कानून में प्राविधान है, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहते हैं, एनआर एक एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। तो अस्पताल ले जाएं और एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव वो जिम्मा ले एनआर होने की। तो आई डोंट थिंक निशा जी चाइल्ड हेल्पलाइन विल बी एबल टू हेल्प डायरेक्टली, जो आपने सेकंड सवाल उसमें पूछा है। चाइल्ड हेल्पलाइन अगर अगर थोड़ा सेंसिटिव है, आपकी कोऑर्डिनेशन में मदद कर सकती है, लेकिन जैसे हमने पहले कहा, किसी भी आम व्यक्ति को, दिव्यांग स्थिति में या मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को, अगर उसकी बिना रजामंदी के, बिना कंसेंट के और उसकी मर्जी के खिलाफ, मर्जी के ऊपर जाकर इलाज करना है, तो एक कानूनी पहलू उभर आता है। तो कानूनी जो स्टेप्स है वो तो फॉलो करने होंगे, लेकिन कानूनी स्टेप से हमेशा मतलब सिर्फ पुलिस और कोर्ट का नहीं है, ये गौर करें। नए कानून में बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन कुछ अच्छे प्राविधान भी हैं। जैसे मैंने कहा, एनजीओ का व्यक्ति नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होने का, ऑफिशियल रिप्रेजेंट कानूनी रूप से उस व्यक्ति को करने का जिम्मा ले, और अस्पताल, खासकर पब्लिक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो हैं हर राज्य में, हर बड़े शहर में, वो उनका इलाज करे, दाखिल करके या बिना दाखिला की। और जो बात हुई डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की ना, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कैन बी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वेरी यूजफुल। अगर दिल्ली के बहुत हैं दर्शक हमारे साथ, तो दिल्ली में कुछ 3-4 साल पहले बहुत और नया इनोवेशन शुरू किया हुआ, मोबाइल मेंटल हेल्थ यूनिट। एक एम्बुलेंस विद मेडिकल डॉक्टर विद काउंसलर अब दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट में एक अवेलेबल है। मांगे गए थे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन 2-3 साल ये लागू हो गया है। तो इबास वेबसाइट पे जाकर उनको ईमेल करके दिल्ली के लिए मोबाइल मेंटल हेल्थ यूनिट की सर्विसेज का भी उपयोग कर सकते हैं। और याद रखें, एनसीआर में लागू नहीं होगा। तो कानूनी रूप से, जैसे हमारे साथी ने, गुप्ता साहब ने, किसी ने याद दिलाया था, दिव्यांग आरपीडब्ल्यूडी और एमएचए सारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक्ड है। तो आपकी हमारी सोच में फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा सब दिल्ली एनसीआर है, लेकिन जहां कानूनी पहलू या प्रशासनिक पहलू आ गया, वहां उस राज्य का रोल हो जाएगा। तो दिल्ली शहर में, दिल्ली स्टेट जो है, शहरी राज्य जो है, वहां ये सेवाएं जरूर मोबाइल मेंटल हेल्थ यूनिट की आप अवेल कर सकते हो। सर, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, क्या उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोग कवर्ड है या नहीं? नहीं है ना, जो मैंने शुरू में कहा, नहीं। बट उसमें याद रखने वाला मुद्दा बहुत अच्छा है गोपाल, आलोक एक बार फिर क्लियर कर ले। अनफॉर्चुनेटली 87 के एक्ट में और 2017 में, दोनों में पहले वाक्य में है कि दिस विल नॉट कवर मेंटल रिटार्डेशन, लेकिन इसका एस्केप विंडो का है, थोड़ा सा कन्वीनियंट अमलीकरण का है। अगर इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट या किसी भी आईडीडी के व्यक्ति को संभावित मानसिक बीमारी भी है, प्रूवन भी नहीं, सस्पेक्टेड मेंटल इलनेस, वो ये है 2O की डेफिनेशन में उस एक्ट में कि ये सस्पेक्टेड मेंटल इलनेस। तो भाई अगर आप हमारे कोई वयस्क या एडोलेसेंट है इंटेलेक्चुअल इंपेयर्ड क्लाइंट,
उसमें हमें संभावना लगती है कि मानसिक बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य की सेवाओं की जरूरत है, तो एक्ट उन्हें लागू हो जाएगा दोस्त, को एग्जिस्टिंग कंडीशंस में। जो बुनियादी रूप से वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक्टिविटीज है, रिहैब एंड एम्पावरमेंट एंड हायर एजुकेशन, वो सब उस एक्ट के तहत नहीं होगा। बट मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, यस। ऑटिज्म भी कवर नहीं। हाँ, ऑटिज्म, सी एज लॉन्ग एज देयर इज सस्पेक्टेड मेंटल इलनेस, भाई ऑटिज्म है, साथ डिप्रेशन की या स्किज़ोफ्रेनिया की संभावना है, अच्छा, और वैज्ञानिक रूप से, जैसे मैंने शुरू में हिंट किया था, अनफॉर्चुनेटली कानून के कुछ और सोच रही, सामाजिक कानूनी सोच रही 87 का और 2017 का एक्ट, इसमें मेंटल रिटार्डेशन अलग कर दिया, जो बहुत अच्छी बात नहीं रही। लेकिन फॉर्चुनेटली न सिर्फ निमेश और सीआईपी जैसे बड़े संस्थान, लेकिन स्टेट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो डॉक्टरी रूप से, वैज्ञानिक रूप से अभी भी उत्सुक हैं और तैयार हैं इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, ऑटिज्म, एडीएचडी के मानसिक स्वास्थ्य के पहलू देखने को। हमारे साथी भी है, जिस शहर में, जिस कस्बे में, वहाँ मानसिक स्वास्थ्य का जो संस्था को अप्रोच करें, या मेडिकल कॉलेज जो मनोचिकित्सा का विभाग है, हाँ, मेडिकल कॉलेज अब और खुलते जा रहे हैं, तो वहाँ जो मनोचिकित्सा का है, मानसिक स्वास्थ्य का विभाग है, वहाँ संपर्क करें। और तीसरा लेवल हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, लोग आज यहाँ पर विराम दें। So we are very much thank you very much, sir. We are coming in the next, next Saturday, not next Saturday, next to next Saturday, October 28, and maybe we will have the, the different topic, and also we will try to cover the mental health in larger topic. Before I say thank you, I would like to tell you that Mashavara is not only for us, not only for Manovikas, it is for everyone, and everyone likes. जब भी डॉक्टर देसाई सर का सेशन होता है, तो उसमें सभी लोगों का काफी इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसीलिए डॉक्टर देसाई सर का he has the lot of interest and lot of things to share with you. So that's what we started the session, season 3 of Mashavara, and we are with the great pleasure. I express my warmest appreciation for season 3 of Mashavara and its episode. This is the number 3.80 episode. Mashavara team and Manovikas family and entire institution, I extend our sincerest gratitude to Almighty God, and thanks to internet also that we have covered Mashavara very good this day. And personally, I would like to thank Dr. Desai sir, his invisible vision and ideas, tackling the issues, keeping the issues in front of you, one or two very live, and it is very, very invaluable. So thank you so much, sir, for your invaluable support and guidance. And we definitely, I warmly thanks to JC Gupta sir for giving your interventions and inputs. Thank you so much, sir. And I also want to express my gratitude to all staff members who assisted in organizing the episode. A special thanks to Ganishka and Pooja and all the staff members. Finally, we have the wonderful guests and participants for your active participation, for your valuable inputs, and keeping affiliation with Mashavara is very invaluable. So your dedication is very invaluable. So thank you all for joining us. And Mashavara season on the different topic and different issues are scheduled on every second and fourth Saturday of the month at 3 p.m. So stay tuned for more exciting discussions on Mashavara Live. Until next time, this is Alok. So I'm signing up. So thank you everyone for directly and indirectly involved in the program. So Jai Hind, thank you very much. I'm sharing you the link where you can download the resource materials. So you please download the resource materials if you required any further information. Thank you all. Thank you everyone.